मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सो स्टार्ट करते हैं। ओके सो क्या देखना है आज? रिवीजन करना है क्या? एक फास्ट ट्रैक रिवीजन। यस सर। यस सर। चलिए कोई इशू नहीं। ठीक है। ओके सो फर्स्ट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बेसिक्स का देखते हैं पहले कि एग्जैक्टली पाइथन को जब भी इंटरव्यू में पूछेंगे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल पे पूछेंगे। ओके उससे पहले एक डायनामिक टाइप जो फीचर्स है वो तो आपको पता है कि फीचर्स कौन कौन से हैं। इट्स इजी टू लर्न। ओके और कौन सा है? इट्स इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट्स एन डायनामिक टाइप। डायनामिक व्हाट दिस व्हाट other languages में we need to what we need to define the variable before use. Suppose here I want to use the integer variable, so I just want to integer a or something float b. I need to define first. Okay, then I can use. So here I can use suppose a 10, b is equal to suppose 30.67. Okay, but in Python we don't need to define because Python is dynamically typed. Dynamically typed means what? It will dynamically create the variable according to the data. According to the data. Okay? तो issue ये नो फीचर सर। ये फीचर इम्पोर्टेंट है। ओके नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। एक आपको आपको एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच लैंग्वेज इज बेटर, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और समथिंग इंटरप्रेटेड है ना, और दूसरा है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज which is better or which is fast? Yes. कंपाइलर। Okay. others others कंपाइलर। बाकी के क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। बाकी के और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नो, compiler based language is fast. This is fast ओके सर। because in compiler we जो first will compile and we are trying to check whether any errors or any syntactical issues are in program or not. अगर नहीं है तो that means it's correctly execute, it is ready to use. So at a time जब भी ये compile होके आएगा तब तक ये तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा ना, लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन। एट द एंड ये तो एग्जीक्यूट हो चुका होगा क्योंकि इसने ऑलरेडी पूरे एरर चेक करके रखे हैं पूरे प्रोग्राम में का पूरा का। So that's why compiler based language is fast as compared to the next one. Next one, the Python support both approach, procedure oriented approach, and then object oriented approach. That means procedure oriented approach क्या होता है कि the problem statement divide into small chunks which is known as function. फंक्शन का यूज कर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको वो डिवाइड करके हम लिखते हैं और ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है प्रोसीजर में। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट। वी आर क्रिएटिंग द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके सो पाइथन है वो दोनों सपोर्ट करता है। जैसे अदर लैंग्वेज में देखा आपने सी प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेकिन पाइथन दोनों। ओके वी कैन राइट
procedure oriented code, we can write object oriented. So Python support procedure oriented and object oriented. As compared to the memory optimization, okay. So in other language, suppose A is equal to 10, okay. Then suppose B is equal to 10. In other language, if we are assign or we are creating two variable but having the same value, so in other language it will create two variable, okay. It will get A for A and for B, okay. But in Python, if the variable having the same value, okay, if variable having the same value, then it will not create the separate blocks in a memory for this variable, okay. So it will only create what, only one memory block, okay. कितने भी रहने दो, नंबर अपने 100,000 वेरिएबल रहने दो, ओके, और उनका अगर वैल्यू एक ही है, ओके, तो वो मेमोरी में सिर्फ एक ही ब्लॉक क्रिएट करेगा, एक ही ब्लॉक क्रिएट करेगा, ओनली हैविंग द रेफरेंस. So A will be refer to this one, B will be refer to the same one. So this is the only one. So that we can say Python is more, that is memory optimized technique, effective memory optimized technique as compared to other languages. Got it? Sir, I have a doubt. Yes. Suppose one list is there and again the same element is there. For example, A is equals to 10 and one list is there, a particular element value is 10 and particular value is assigned to a B, for example. Then the different memory will be allocated or same one? ऑब्जेक्ट का आता है उधर, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट होता है, Memory वैल्यू will रेफरेंस अलग है, yes, ओके, वैल्यू रेफरेंस अलग रहते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस अलग. ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, अब जब आप फंक्शन को फंक्शन ही करें तो वहाँ पे अलाइसिंग क्रिएट, No, दोनों को भी सेम आईडी. I am assigning only a single value of a list. Suppose 10, 20, 30, 40 अशी व्हॅल्यू आहेत आणि त्यातली फक्त मी 10च प्रॅक्टिकली करून दाखवतो. पाइथन 23 के कितने हैं? सर मैं एक हूँ पाइथन 23. हाँ ना यार, आप एक बार 23 मैसेज सर. आपका प्राइवेट होगा ना, उधर मैसेज करो क्या है. आप पाइथन 23 और 22 की वजह से मैं जांगो पॉज किया कल 21 का भी, ओके ना. तो आप थोड़ा पर्सनल ग्रुप में ना आप एक बार मैसेज करने करो, जो कुछ है वो सॉर्ट आउट कर लो, एचआर को बोल के बोलो. हाँ, अब उनके वजह से गिट का सेशन भी पॉज हो सकता है, तो प्लीज़ एक बार उनको कन्वे करो, जो कुछ है सॉर्ट आउट कर लो, अदरवाइज आपका जांगो में लेट हो जाएगा. अभी कुछ नहीं सर लेकिन सर 22 बैच को टाइम दिया था ना सर. तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कल मैसेज डाला था स्नेहल को, तो उनका कुछ ये है. अभी मेरा कुछ एटलीस्ट फाइनेंशियल हमें थोड़ा सर थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था ना. 15 नवंबर दिया था ना, वो मतलब 2 दिन पहले बोल रहे थे. नहीं 15 सर, नवंबर 2 दिन दिया. पहले बोला था ना. जो कुछ है देखो एक बार, मुझे वो फाइनेंशियल इसमें मैं इंटरवेंशन नहीं कर पाऊंगा, तो उधर मेरा कोई रोल नहीं है, ओके. तो आप चाहे तो एक बार सर जी से बात कर लो, या क्या होता है क्लास पॉज हुआ ना तो फिर लिंक टूट जाता है. अभी कुछ नहीं, अभी फ्लो चल रहा है अच्छा. बाकी जंगो में भी आपको पता है, जंगो में थोड़ा भी गैप हो गया तो आगे दिक्कत आता है समझने में. हाँ सर. वो एक इंटरलेटेड. सर ये रिवीजन का वो क्लास पाइथन 24 का रिवीजन चल रहा है, बोल दूं क्या सर वहाँ पे ग्रुप में? हाँ बोल, मीन्स वैसे जिसको कुछ नहीं. ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं सर. हाँ लेकिन वो ग्रुप में लिंक मत डालो. नहीं नहीं, लिंक नहीं. वो आपके पर्सनल ग्रुप होगा कोई उसका, तो उसमें डाल सकते हो, जो अपने अपने कैंडिडेट है अपने क्लास के, वो ज्वाइन होते हाँ, कोई हाँ. इशू नहीं. मुझे कुछ नहीं यार, मुझे ये नहीं, लेकिन आपको कैसे वो इशू सॉल्व होना चाहिए,
मेरा इतने में होता। ठीक है, कोई इशू। हाँ बोलो, क्या कॉन्सेप्ट था? मेमरी हाँ ब्लॉक सेम लोकेट होतोय का ते हाँ, चेक करायचं. नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? P इज इक्वल टू, हाँ सपोज हाँ, p is हाँ equal to 10, 20, 30. हाँ, कॉमा 30, हाँ। And then b equals to 10, P इज इक्वल टू 10, 10, and then a equals to p of 0, A इज इक्वल टू p of 0. P ऑफ जीरो, No, P a ऑफ, is equal to a is सॉरी, equals to p of 0. ओके दैट मींस, ओके वैल्यू का बोल रहे क्या? अभी हाँ हाँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपने zero sir, zero zero. सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या गया? P इज इक्वल टू 10, ये कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। ओके, Okay. अगर आप हाँ ये इससे हाँ आईडी ऑफ P करोगे, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। आईडी ऑफ 10 B का आईडी ऑफ क्या है, आईडी ऑफ C, ये कंप्लीटली डिफरेंट आएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ओके, आई एम नॉट श्योर, इज इट करेक्ट? या इट्स करेक्ट, it is same. यस इट्स, बिकॉज वैल्यू है ना वो, हाँ हाँ हाँ. वैल्यू सेम होने के कारण वो क्योंकि वो मेमोरी में कैसा होता है, मेमोरी में थोड़ी म्यूट करो, म्यूट करो। एक्चुअली क्या होता है मेमोरी में, क्या होता है, आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो ये मेमोरी, इसको थोड़ी पता है मेमोरी की ये लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट के अंदर का एलिमेंट है। वो क्या होता है, जब भी लिस्ट इज नथिंग बट द सेल्फ, एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑब्जेक्ट खुद है क्लास का, ओके। उसके अंदर जब आप वैल्यू ए करते हो, तो यहाँ पे अगर 10 करते हो, 20 यहाँ पे आता है, यहाँ पे 30 आता है, तो ये रेफरेंस क्रिएट होता है, ये मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन पे वैल्यूज होते हैं। अगर आप ए इज इक्वल टू 10 कर रहे हो, बराबर है, तो इसको तो मेमोरी को थोड़ी पता है कि ये 10 ये सेपरेट है और ये 10 लिस्ट का है। एक्चुअल मेमोरी में स्टोरेज लेवल का है ये कॉन्सेप्ट। स्टोरेज लेवल पे तो होने जब होता है तो वैल्यू ही होता है ना, स्टोर 10 ही होगा, Yes लिस्ट sir. नहीं होगा ना, लिस्ट नहीं होगा। इन दोनों का इंटरकनेक्शन कैसे किया है कि उनका इंडेक्सिंग, एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग लिखा है अंदर कि लिस्ट में होने के कारण 10 ये स्टोर है 0 इंडेक्स, ये लिस्ट ये हैंडल करता है, ये लिस्ट जो क्लास हमने लिखा है अंदर पाइथन, हमने नहीं, पाइथन जिसने बनाया, लेकिन एक्चुअल जब स्टोर होता है वो तो मेमोरी पे ऐसे 10 20 होगा। तो आप जितने भी वैल्यू बनाओगे, अभी बी इज इक्वल टू 10 किया आपने, या जेड इज इक्वल टू 10 किया, तो दैट मीन्स वो सर्च करेगा कि 10 वैल्यू है क्या ऑलरेडी, अगर है वैल्यू मेमोरी में तो उसका ही आईडी इसको असाइन करेगा, दैट्स व्हाई वो सेम आ रहा है, मेमोरी लोकेशन पे अलग ऑपरेशन, एक्चुअल वैल्यूज, Okay sir. Okay. दैट मीन्स वैल्यू सेम रहेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं। तो ये मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, ये हो गया फीचर। उसके बाद में हमने देखा था गाइस कि रूल्स क्या है आइडेंटिफायर डिफाइन करने के, क्या क्या रूल्स है? यस, आइडेंटिफायर से करने की, आइडेंटिफायर्स, ओके, क्या क्या रूल्स है कि ये जो है ये स्टार्ट नहीं कर सकते किससे, Symbols. नंबर से। Numbers या numbers. अलाउड जो कैरेक्टर है वो कौन 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 से है? स्मॉल a to z, Underscore. okay, capital A to Z, then 0 to 9 and underscore, अलाउड कैरेक्टर। आइडेंटिफायर्स क्या है कि अब जब कभी नाम देते हो, वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, तो वो नाम कैसा होना चाहिए, उसके रूल्स से आइडेंटिफायर्स ने आइडेंटिफाई करने का, हमें वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, क्लास को आइडेंटिफाई करना है, उसका नेम कैसे दे सकते हो? तो अलाउड कितने हैं, ये इतना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप बोलोगे सर इससे अंडरस्कोर से फंक्शन भी कर सकते क्या? यस कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में 10 क्या कि हम आइडेंटिफायर को नंबर से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। आप करोगे दोगे ना ऐसा नंबर, तो हियर आइडेंटिफायर्स व्हाट, आइडेंटिफायर्स नेवर स्टार्ट्स विद नंबर, ओके, कोई इशू नहीं, नंबर से हम कभी स्टार्ट नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप अगर देखोगे ना यहाँ पे नंबर से, आपने देखा होगा, आप प्रैक्टिस करते होगे तो आपने देखा होगा कि सिंटैक्स, ओके। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, पेस्ट अंडरस्कोर 10, हाँ, इट्स नो इशू, इट्स कंसिडरेबल,
score. Okay, it's considerable. Okay. और नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि आइडेंटिफायर्स का जो लेंथ है, आइडेंटिफायर्स का लेंथ, तो वो मैटर नहीं करता है। आइडेंटिफायर्स एनी लेंथ का आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, रीजनेबल लेंथ तो ये नहीं, ए इज इक्वल टू, सपोज ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर लेता हूँ मैं जैसे कोई वैल्यू देना है मुझे, कैन गिव दी वैल्यू, सपोज यहाँ पे इट्स पॉसिबल, इज पॉसिबल, ऐसा भी वैल्यू दे सकते हो। अदरवाइज कौन से भी ये लगा सकते हो, ऐसे वैल्यू दो अगर दोगे ना, पी 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 ये इतना बड़ा वेरिएबल बनाया 10x कोई इशू नहीं। any length that's acceptable, you can create identifier with any length, no issue। कोई डाउट है क्या? No, sir. नो सर। ओके, ये हुआ आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स। तो उसके बाद में क्या देखा था हमने, इसको ही लेता हूँ सामने। ये कुछ आई थिंक मुझे नहीं लगता इसको बोलने की जरूरत है। तो ये टाइप्स ऑफ लैंग्वेज क्या रहता है, कंपाइलर क्या रहता है, इंटरप्रेटर क्या रहता है, ऐसा कुछ है क्या? आइडियलिस्ट कौन कौन से यूज करना है? आपने स्पाइडर देखा है कभी? स्पाइडर Yes, sir. है सर उसमें वो एनाकोंडा में? यूज किया है क्या कभी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, आज स्पाइडर यूज नहीं, डोंट वरी, आगे भी यूज करने वाला हूँ जंगों में। अभी जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपका, वो तो कल से, तो वो रहेगा कम्प्लीटली ऑन पाइचाम। अभी तक हमने बेसिक पार्ट देखा वो जुपिटर। ओके, कल से हम पाइचाम देखेंगे। उसके बाद में हम नोटपैड पे कोडिंग करेंगे। उसके बाद में हर एक आइडियली आपको पता होना चाहिए। आपको कोई ना विजुअल स्टूडियो भी करने वाले, VS कोड। यहाँ पे एक स्पाइडर, ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे क्यों पसंद नहीं है, या मैक्सिमम लोग क्यों नहीं उसको प्रेफर करते, यहाँ पे वो ऑटो ये नहीं आता है, जो सजेशन आता है ना, वो नहीं आता स्पाइडर में। अब इसके विंडोज देखो कौन कौन से है। इसको विंडोज, ये अपना एडिटर विंडो है, ये अपना आप वेरिएबल बोल सकते हो इसको। यहाँ पे आप कितने टाइप के वेरिएबल क्रिएट हुए, क्या हुए, वो सब यहाँ पे वेरिएबल का लेंथ क्या है, उसका टाइप क्या है। अगर मैं इसको ये करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यू कैन सी मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, जो उसका टाइप है इंटीजर, उसका साइज है 1, दैट मीन्स 1 बाइट, और उसका वैल्यू है 10। इतना बढ़िया से आपके प्रोग्राम में कितने वेरिएबल बन गए, उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा। तो ये पैकिंग के लिए बहुत बढ़िया है कि वैल्यू का भी तो वेरिएबल और उसका टाइप कौन सा है और उसका वैल्यू क्या है, तो उसके लिए ट्रैकिंग के लिए। और ये हमारा आउटपुट कंसोल है। एडिटर वेरिएबल का है, यहाँ पे और भी है हेल्प वाला, प्लॉट्स, अगर ग्राफ है तो यहाँ पे प्लॉट्स होगा, फाइल्स है तो यहाँ पे फाइल्स दिखेगा। बढ़िया है ये भी, ऐसा कुछ नहीं मोस्ट ऑफ ऐसा कुछ नहीं। आप बोलोगे सर यूज कौन सा करना है रियल टाइम में, तो आपको जो पसंद आए वो करना है। एट द एंड तो कोड तो वही रहने वाला है, डेवलपमेंट वही रहने वाला है। आप पाइचाम करो या विजुअल कोड को VS कोड करो या स्पाइडर करो, सर जुपिटर नोटबुक का कोड इधर चलता नहीं है। चलता है, ऐसा कौन बोला नहीं चलता है? पाइचाम में नहीं चल रहा था सर। नहीं चलता है, मैं करके देखूंगा। सिर्फ वहाँ पे डायरेक्टली आप वेरिएबल, ये कंसोल बेस है, ये कंसोल बेस है। अगर मैंने यहाँ पे ये एक वेरिएबल बनाया, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे p इज इक्वल टू 100, बराबर, ये मैंने एग्जीक्यूट किया और मैं p को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये हो जा रहा है, मुझे आउटपुट आ रहा है। लेकिन ये पाइचाम में नहीं होगा, पाइचाम में या स्पाइडर में आपको इसको प्रिंट करना पड़ेगा। ये कंसोल बेस है। जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट चलाते हैं ना, यहाँ पे कमांड चलते हैं ना, देखो हम एलएस किया तो ये एलएस चल रहा है, ये कमांड बेस इंटरेक्टिव बोर्ड है। ओके, इसके लिए आपको यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा। अगर स्पाइडर में आप लिख रहे हो, अगर सपोज मैंने a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सपोज 30 किया, ओके, फिर बाद में मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, ऑपरेशन यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस b
ऐसे किया, तो इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं सी को अगर ये करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको ये करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट किया, तो सी को मैं करके ये होता है, आउटपुट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एरर देगा। अगर आप करोगे ना, तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट व्हाट सी, तब जाके वो वेरिएबल कौन से बन गए है कि नहीं? बढ़िया। हाँ सर। यहाँ पे सेम कोड चलता है, डोंट वरी। ऐसा मत सोचो कि जुपिटर में का कोड इधर नहीं चलेगा, चलेगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मींस आपने जहाँ जहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल को डिस्प्ले किया है उसको प्रिंट पे लिखा। ठीक है, आज मैं इस पे एक पूरा कोड रन करने के लिए कौन सा कमांड यूज करना है? ये है, अदरवाइज शॉर्टकट है उसका रन फाइल। और सर ये रन फाइल में क्या दिखाता है? अच्छा, ये क्या आउटपुट कंसोल में हाँ, ये एक्चुअली स्पाइडर का जो पाइथन है, पाइथन बेस उसका एक वो बात है, वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा आपका वो दिखाता है, और इसने पाइथन कौन सा ये फाइल क्या नाम है से लिया है वो पाइथन का ये वर्किंग पाइथन कौन से कहाँ से लिया, और ये मेरा tm.py मेरा फाइल है। ये जो फाइल है ना उसका नाम है tm.py, देखो यहाँ पे। और करंटली वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है मेरा ये, अगर चाहे तो आप यू कैन import OS, okay, so here in OS dot run working directory, okay, drive OS has not current working directory, present working directory, right? क्यों नहीं आ रहा है? इसकी वजह से मुझे पसंद नहीं आता। OS dot current working directory, current directory सर 8CWD will work. हाँ वो भी, हाँ यस 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 8CWD वो भी है। और ये इसको पैकेट करंट डायरेक्टरी कौन सा हो रहा है, कॉलेबल नहीं हो रहा है, ये करंट डायरेक्टरी दिया उसने। यस OS डॉट ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी अगेन। ये देखो, ये मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, कंट्री डॉट स्पाइडर पाइथन। तो ये देखो आया, और उसके अंदर का कौन सी फाइल पे आप रन उसके अंदर कौन सी फाइल को रन कर रहे हो आप, तो इसको रन कर रहे हो, कौन सा im.py। इस पे करना, इस पे भी कर सकते हो प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ नहीं। आज इस पे बताओ क्या हाँ जुपिटर सर में, बताइए। जुपिटर में करो। नहीं स्पाइडर पे ही करो आज। ओके चलेगा, ओके ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, बोल तो आइडेंटिफायर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे डेटा टाइप्स, कौन कौन से डेटा टाइप्स। यहाँ पे मैं ये करना पड़ेगा, एक मैं नोट पैड मेंटेन रखता हूँ आपको ये देने के लिए, रिवीजन का एक, तो वहाँ पे मुझे हर एक .py का फाइल बनाना पड़ेगा हर एक कॉन्सेप्ट के लिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे नोट पैड बनाता हूँ, तो इस पे मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ उधर से। ठीक है, डेटा टाइप कौन कौन से हैं, int of float लिस्ट Complex string. ट्रिपल, उसके बाद bool इंटीजर वहाँ से कर गया, ओके इंटीजर
फ्लोट का float, complex, स्ट्रिंग complex, boolean, कॉम्प्लेक्स boolean none set, list, tuple, list tuple, dictionary, dictionary, dictionary no, set, set set, frozen न्यूमरिक okay, frozen set ओके इसके साथ में ही आते हैं रेंज रेंज आल्सो डेटा टाइप याद रखो ठीक है नेक्स्ट अभी क्या है इसमें इंटीजर तो पता है एवरीथिंग है देखो इंटीजर क्रिएट कर रहे हो ना आप ये इंटीजर है फ्लोट है स्ट्रिंग है नॉन कॉम्प्लेक्स जो कुछ है ये सब है ना ऑब्जेक्ट एक्चुअली सबका अंदर एक क्लास है इंटीजर का एक क्लास है फ्लोट का क्लास है ओके हम जो क्रिएट करें ना वो ऑब्जेक्ट अगर आप मैं पहले टाइम बोलता था तो आप कंफ्यूज हो जाते थे यहाँ पे अगर करोगे ना आप यहाँ पे प्रिंट प्रिंट द टाइप ऑफ ए करोगे यू कैन सी विल क्लास इंटीजर ये देखो क्लास क्लास इंटीजर दिख रहे तो एवरीथिंग इन पाइथन इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट सो वी आर क्रिएटिंग हियर इंटीजर जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसको वैल्यू पास करें यहाँ से ये देखो क्लास समझ में आ रहा है क्या तो पहले इसको मैंने वो बताया क्यों नहीं था क्योंकि आपको उतना आइडिया अभी थोड़ा सा क्लास ऑब्जेक्ट होने के बाद में और एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है ओके तो जब भी कभी आप अगर मैं सपोज एक ये बनाता हूँ सपोज यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ मैं ध्यान से देखो ध्यान से यहाँ पे यहीं पे बना देता हूँ इसमें समझ में आएगा क्या कि इसमें नहीं बनाना यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ क्लास ये मेरा यूजर डिफाइन क्लास है मैं बोलता हूँ टेस्ट यहाँ पे डेफ मैं क्या करता हूँ यम1 ठीक है यहाँ पे मैं सिंपल में सेल्फ यहाँ पे प्रिंट यम1 यहाँ पे डेफ यम सेल्फ प्रिंट इन यम ओके ये मैंने लिख दिया क्लास बनाया अब मैं क्या करता हूँ एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऑब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू टेस्ट ओके और यहाँ पर ओबीजे डॉट यम1 करता हूँ कोई इशू नहीं अभी इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो इशू नहीं देखो इन यम1 आ गया ओके अगर मैं यम10 करता हूँ m10 तो आउटपुट क्या आएगा 30 ये क्या आएगा एक एरर आएगा क्या एरर आएगा ध्यान से इस एरर को मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लूँ और यहाँ पे थोड़ा पेस्ट कर ध्यान से देखो एरर अब टेस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट m10 ऐसा कभी एरर आया क्या आपको yes sir, कब आया देखो इधर इसको जानबूझ के देखो अगर मैं करता हूँ p इज इक्वल टू 1,2,3 p डॉट ऐड करता हूँ ऐड 1 पे मुझे 100 करना है अगर मैं इसको रन करता हूँ क्या एरर आया not, क्या एरर आया देखो सेम एरर है yes sir, हाँ तो इसका मतलब हमने क्या बनाया था टेस्ट एक क्लास बनाया थोड़ा सा देखो कहीं मैं थोड़ा सा डीप में बोल रहा हूँ चलेगा ना समझ में आ रहा है कि लिखे आपको आया ना अंदर कैसे प्रोसेस हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना तो अंदर क्या क्या हो रहा है हम क्या यूज कर रहे हैं पाइथन का कौन सा फीचर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर टेस्ट नाम का एक क्लास रहेगा है हमने यूजर डिफाइन क्लास ये हमने क्लास बनाया करेक्ट उसमें एट्रीब्यूट इज नथिंग बट द ऑपरेशन एट्रीब्यूट इज नथिंग बट द वन मेथड्स एट्रीब्यूट नथिंग बट द प्रॉपर्टीज ऐसे बोल सकते हैं हम जब मेथड कॉल कर रहे हैं अंदर तो यहाँ पर आपने ट्यूपल बनाया था
बराबर है। तो ट्यूपल नाम का ये ट्यूपल जब बनाते हो ना, ऐसे ही आपने इनडायरेक्टली आपने एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये जो बनाया मैंने, यूजर डिफाइन क्लास है। यहाँ पे हम प्री डिफाइन क्लासेस यूज करें। तो आप जब भी इंटीजर बना रहे हो, फ्लोट बना रहे हो, स्ट्रिंग बना रहे हो, मतलब जो भी कुछ बना रहे हो, जो भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, दैट इज मीनिंग यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। मतलब उसका ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है। क्लास है। थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा अभी ना आप डेवलपर के व्यू से सोचो। अभी अभी आप कैंडिडेट्स के, अब वो न्यू कमिंग, ये अभी थोड़ा सा अलग सोचना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर। हम क्या कर रहे हैं, अंदर ऑलरेडी क्लासेस बनाया है। हर एक बात पाइथन में, आपको अगर किसी ने पूछा पाइथन क्या है, तो पाइथन ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो ओनली क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बना है। खत्म, यहीं पे खत्म हो जाता है पाइथन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी करो पाइथन का, वो ऑब्जेक्ट ही बना रहे हो। कुछ भी करो, कुछ भी। मैंने बोला आपने जो कुछ क्रिएट किया है, जो कुछ डिफाइन किया है, वो एक ऑब्जेक्ट। आप बोलो, मैं बता दूं। आप जो भी कुछ कर रहे हो, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको हम ऑब्जेक्ट बना के यूज करते हैं। यहाँ पर आपने ट्यूपल नाम का एक क्लास है, ट्यूपल नाम के क्लास में ऐड नाम का मेथड है क्या? No. नहीं। दैट्स व्हाई उसने ये एरर दिया। यहाँ पे लिस्ट टेस्ट नाम का बनाया था, उसमें हमारा M10 नहीं था। अगर मैं M10 के जगह पे M2 करता था, यस, इट्स गेटिंग एग्जीक्यूटेड। करेक्ट। तो हम जो मेथड सीखे हमने, स्ट्रिंग के कुछ मेथड, हमने लिस्ट के कुछ मेथड है, अपेंड, इंसर्ट, उसके बाद में कौन सा देखा हमने, एक्सटेंड, और कौन सा देखा, पॉप, रिमूव। तो ये क्या है, ये क्या है? Inbuilt मेथड्स है। इसका मतलब लिस्ट नाम का एक क्लास है, अंदर उसके कुछ मेथड्स है, तो हम उसको कॉल करें, दैट इज नथिंग बट द एट्रीब्यूट्स। उसका प्रॉपर्टी, वो क्लास का प्रॉपर्टी, वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। आपका प्रॉपर्टी मैंने पूछा, आप एक क्लास, सपोज एक ह्यूमन नाम का एक क्लास है, स्टूडेंट नाम का एक क्लास है, तो उसमें से पर्टिकुलर स्टूडेंट, ये सपोज मैं बोलता हूँ कि राहुल, ये उसका ऑब्जेक्ट है जो क्लास के पास है। क्लास क्या क्या एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेगा? राहुल चल सकता है, राहुल दौड़ सकता है, राहुल लिख सकता है। ये क्या है? ये एट्रीब्यूट्स। तो राहुल उतने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो लिस्ट नाम का एक क्लास है, और हमने एक पी नाम का एक बनाया, तो पी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। पी क्या क्या परफॉर्म करेगा? जो क्लास में लिखा है, पी ये परफॉर्म करेगा इंसर्ट ऑपरेशन, क्लास में ऑलरेडी इंसर्ट है। पी को परफॉर्म करेगा अपेंड ऑपरेशन, क्लास में ऑलरेडी अपेंड ऑपरेशन लिखा है। मेथड से सर वो वेरिएबल एक्सप्लोरर में सर ऑब्जेक्ट टेस्ट, और वो आगे में लिखा है टेस्ट ऑब्जेक्ट फॉर मेन मॉडल सी है। ये अभी अभी इसको डंडर मेथड बोलते हैं, इसको डंडर मेथड बोलते हैं। जब मैं मॉड्यूल पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा ये, ओके सर। क्योंकि ये इनबिल्ट मॉड्यूल्स आते हैं सब। जब भी आप कोई ये फाइल क्रिएट करते हो ना, तो पाइथन उसके साथ में कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल भी देता है। ओके, अगर मैं इसको मैं अगर प्रिंट करूंगा, प्रिंट dir इनसाइड temp.py, तो इसके साथ में ना कुछ इनबिल्ट नहीं, मेरे temp इज नॉट डिफाइंड, और मुझे इसका ही करना है ना, temp.py है ना। सेकंड, इसमें तो होता है ना dir, चाहिए नाम देना पड़ेगा। अरे सिंगल कोट में देना था, डबल कुछ भी नहीं किया था ऐसा। सिंगल कोट dir सिंगल कोट कहते हैं ना। जब भी आप पाइथन का मॉड्यूल क्रिएट, देखो अभी यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि आप पाइथन में मॉड्यूल क्रिएट करे हो, तो मॉड्यूल का ऑलरेडी एक क्लास है। मैंने आपको पहले बोला कि पाइथन में आप जो भी कुछ करोगे ना, वो ऑलरेडी क्लास और ऑब्जेक्ट। तो आपने पाइथन का फाइल बनाया, तो इसका भी कुछ एट्रीब्यूट रहेंगे ना,
दैट इज मीन यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट उसके ये मेथड से दिख रहा है क्या? यस ये क्या है? ये जो अंडरस्कोर है ना, इसका स्पेशल मीनिंग है, इसको बोलते हैं डंडर मेथड और मैजिक मेथड। ये इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज डंडर मेथड। ये हमने क्रिएट नहीं किया है, ये किसने किया है? ये पाइथन ने क्रिएट किया है। इसका एक स्पेशल ऑपरेशन, समझ में है ना? अगर आपको मोबाइल आता है तो मोबाइल के साथ में सेटिंग आता है, तो सेटिंग में ठीक है, सेटिंग में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर सिस्टम रिलेटेड सेटिंग चेंज करना है तो आपको उसको रूट करना पड़ेगा। अंदर का सेटिंग, दो सेटिंग रहते हैं ना, एक रूट सेटिंग और एक नॉर्मल सेटिंग। हाँ ये सर। सब यस सर यस। आप अंदर जाने के बाद में उसको रिबूट कर सकते हो, उसको रूट, जो बहुत सारे ऑपरेशंस। तो ये है उस तरीके से, ये नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं है। ये अगर आपको कुछ इनबिल्ट कुछ फंक्शनैलिटी चेंज करना है उसके लिए है। ओके, ये हमें अभी नहीं, ये उसका ही है मॉड्यूल मीन्स है। ये मेन, अभी इसका मेन है ना, मेन और नेम ये एक जैसे रहता है। इसका जो लास्ट में मैं इसका सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली अंडरस्कोर मेन क्यों दिया है। अच्छा है तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पाइथन में क्या है एक्चुअली। जैसे आप इसमें करते हो सी में या सी प्लस प्लस में या जावा में, ओके, आपने कुछ कोड लिखा है, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ कोड लिखा है, इधर भी कुछ कोड लिखा है, इधर भी कुछ कोड लिखा है। तो ये कोड कहाँ से एग्जीक्यूट होगा? अगर ये सी में है, ये सी प्लस प्लस में और ये जावा में, ये कहाँ से एग्जीक्यूट होगा? बोलो, सी में कोड कहाँ से एग्जीक्यूट होगा? Main से start. बराबर है। सी प्लस प्लस में Also main. बराबर, यहाँ पे भी मेन, करेक्ट, ऐसा कुछ है। Main. हाँ, तो पाइथन में ऐसा कुछ है क्या? नहीं. मेन मेथड नहीं। नहीं, करेक्ट। तो फिर हम इसके लिए आता है एक इनबिल्ट में उन्होंने क्या है, अंडरस्कोर मेन दिया। ओके, ये अंडरस्कोर मेन ये यूज होता है जब भी आपको कहीं कभी भी फाइल को कहाँ से एग्जीक्यूट, अगर शॉर्ट एग्जांपल बताता हूँ। अभी ये कोड है, ये कहाँ से स्टार्ट करना है ये थोड़ी पता है। अभी ये मेन फंक्शन हमने तो लिख दिया, कोई इशू नहीं, ये मेन फंक्शन तो लिख दिया। कहाँ पे फंक्शन कहाँ पे? ये मेन फंक्शन, करेक्ट, ये मेन फंक्शन है, लेकिन इसको चालू करने का मुझे यहाँ से, तो पाइथन में कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, तो उसके लिए इनबिल्ट मेथड यूज होते हैं। कौन सा? ये अंडरस्कोर मेन इक्वल टू नेम। अभी ये क्या है ना, ये बाद में सिखाने वाला होगा। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है, ट्रू होते ही है, तो तब जाकर मेन से एग्जीक्यूट स्टार्ट होगा। इसका मीनिंग जब भी ये मॉड्यूल क्रिएट करते हो आप, ये उसके साथ में ये अंडरस्कोर मेन आ जाता है, इसका इक्विवेलेंट है। ये इक्विवेलेंट टेस्ट है ना, ये टेस्ट ऑब्जेक्ट, ये मेन। अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा ना, अगर प्रिंट अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर डबल सिंगल कोट में सी, ये लास्ट में है। अगर मैं यहाँ पे नेम करता हूँ, नेम अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर डायरेक्टरी को निकाल देता हूँ। यू कैन सी क्या आता है, क्या आया? तो ये जुगाड़ लगाया वाला पाइथन में, कुछ नहीं। इसका नाम और इसका नाम सेम है, ये कंडीशन तो कभी भी ट्रू ही होगी। अगर आप लगाओ वहाँ से फिर क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या फर्स्ट वहाँ पे आपको कुछ फंक्शन का नाम स्पेसिफाई। ये लॉजिक समझ में आया क्या आपको? ये क्यों किया? ये दो, ये ऑलवेज ट्रू रहेगा ना। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहीं तो भी स्टार्टिंग पॉइंट तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। ये पाइथन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन वो कहाँ पे, ये कोई ऊपर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कब तक? जब तक वो नीचे तक आता नहीं। हाँ, फिर ये देखेगा, अरे हाँ, अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मेन है, ठीक है, इसका ये ट्रू है। ट्रू होने के बाद में ये फंक्शन मेन फंक्शन। अरे नहीं समझ में आया छोड़ो, जब स्क्रिप्टिंग कहूँगा तब मैं आपको ये सिखाऊंगा एग्जैक्टली।
अभी ये समझ में आया कि सबको कि एग्जैक्टली पाइथन में स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम जब लिस्ट कुछ भी बनाते हैं तो क्या बनता है, समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे पाई लिस्ट करता हूँ, पाई लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया अभी, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लिस्ट नाम का एक क्लास है बराबर। ओ पाई लिस्ट नहीं, पाई लिस्ट ये ऑब्जेक्ट है, लिस्ट नाम का क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। करेक्ट। अरे समझ में आ रहा है क्या कि समझ गया। टू कैंडिडेट से समझ में आ रहा है ना मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ओके, अब इसको अगर मैं पाई लिस्ट डॉट, अभी ये करूंगा, डॉट मींस क्या कर रहा हूँ मैं, उसको कॉल कर रहा हूँ अंदर के जो मेथड्स है, किसके मेथड है, लिस्ट नाम के क्लास के अंदर के जो मेथड्स है उसको कॉल कर रहा हूँ। उसके अंदर के भी देखो इंसर्ट नाम का मेथड है, तो इंसर्ट, आप इंडेक्स देना है, कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, मुझे सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स पे करना है। क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस क्या है, इंटीजर भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं 10 करता हूँ तो 10 इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ना, इंटीजर ऑब्जेक्ट है ना वो। दैट्स ओके, कोई इशू नहीं। रीन व्हाट पाई लिस्ट हो गया, समझ में आ रहा है अभी। यस सर। नॉर्मल नॉर्मल रिवीजन क्या मैं फटाफट वो वैसे ले सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली अभी वो समझा रहा हूँ कि मैं अंदर कैसे होता है। मैं अभी आपका थोड़ा सा वो ग्रास्पिंग पावर वो बढ़ गया अभी, क्योंकि ऑलरेडी आपका बेसिक पाइथन हो चुका है, तो ये ऑपरेशन आपको पता है। ये वापस वापस वो बोलूंगा तो वो कोई सर वो मीनिंग नहीं रहेगा ना। स्पाइडर ऑटो रिक्वायरमेंट दिखाता है क्या? हाँ स्पाइडर ऑटो रिक्वायरमेंट दिखाता है क्या? आपने इंसर्ट डाला तो उसने कॉमा वगैरह ये दिखा दिया। हाँ, वो सजेशन प्रेडिक्शन देता है, लेकिन जितने जितने ये पाइचाम देता है ना उतना ही नहीं देता। ओके, यहाँ पे अगर पाई लिस्ट अगर करोगे, पाई लिस्ट डॉट, ये देखो लिस्ट के पूरे मेथड दे दिए। अगर आपको देखोगे ना ये पूरा, तो ये यहाँ पे जाके ये इसके नहीं है, ये लिस्ट क्लास के। अगर आप क्लास देखोगे ना इसका, लिस्ट क्लास, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट कौन सा है इसको निकाल, और यहाँ पे मैं प्रिंट एल एल, और यहाँ पे मैं लिस्ट लिस्ट प्रिंट करता हूँ। देखो ये पूरे मेथड्स है, लिस्ट नाम का क्लास है, ये क्लास मामले यहाँ पे क्लास, देखो यहाँ कहाँ तक, यहाँ से क्लास लिस्ट, लिस्ट नाम का एक क्लास है, उसको हम ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है हमारा, इंटीजर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, वो तो इनहेरिट हुआ है एक्चुअली ऑब्जेक्ट से। आप कौन कौन सा मेथड ही कर रहे हो, ये मेथड से देख रहे हैं, अपेंड नाम का मेथड, क्लियर नाम का मेथड, कॉपी नाम का, पूरे मेथड से आपने जो यूज किए, समझ आ रहा है क्या। और ये डंडर मेथड, हाँ सर। ओके यहाँ पे ये लिस्ट है, तो ये उसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, क्लास अंदर जो लिस्ट है उसको क्लास। अभी इसमें कौन सा एक मेथड आपको डाउटफुल मुझे बोलो, वो मुझे बोलो। पाई लिस्ट में आपको इंसर्ट पता है, करने डॉट अपेंड, क्या भेजना मुझे, सपोज मैंने 100 लिखा, ये होता है क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं है, प्रिंट पाई लिस्ट अंडरस्कोर लिस्ट, देखो अपेंड एक्सटेंड करना है मुझे कोई लिस्ट, पाई लिस्ट, पाई लिस्ट। अब यहाँ पे देखो मैंने अपेंड किया ना, तो ये क्या करेगा, अंदर जाने के बाद में इसको अपेंड, देखो अपेंड मेथड कहाँ पे, यहाँ पे अपेंड द ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ओके ठीक, यहाँ पे आपने
ऑब्जेक्ट भेजा है, जो ऑब्जेक्ट है आपने वो भेजा है। ऑब्जेक्ट मीन्स हमने 10 भेजा तो ये 10। और सेल्फ में क्या जा रहा है, तो सेल्फ में ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जा रहा है। अगर अभी बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेल्फ में ये जा रहा है, ये पाई लिस्ट जा रहा है सेल्फ में, और जो ऑब्जेक्ट में 100 जा रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा, क्लास ऑब्जेक्ट होने के बाद में समझ मे बी 23 वालों को समझ में आ रहा होगा। क्लास ऑब्जेक्ट हुआ है ना? यस सर। सेल्फ में क्या जा रहा है, सेल्फ में 100। सेल्फ में 100 जा रहा है। क्या बात है। नहीं, ऑलरेडी जो फाइल लिस्ट है वो सेल्फ में जा रही है और जो अपेंड किया वो लास्ट में जा रहा है। ऐसा करोगे अच्छा होगा। वाह वाह, बढ़िया। सेल्फ में कैसे जाएगा 100, मुझे वो नहीं पता है। सेल्फ में ऑब्जेक्ट जाएगा, इंटीजर ऑब्जेक्ट भेज रहे हो आप यहाँ से, ओके। सेल्फ ऑब्जेक्ट में ये जाएगा, ऑब्जेक्ट में 100 जाएगा। और जो सेल्फ है, सेल्फ वहाँ पे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट, आपने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये देखो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पाई लिस्ट। मतलब सर और एक बार अपेंड करेंगे तो फिर सेल्फ वो 100 तक चलेगा। अरे नहीं, और वो आप पाइथन 24 से हो गया। यस सर। हाँ नहीं, अभी नहीं समझ। जब क्लास ऑब्जेक्ट होगा तब एग्जैक्टली समझेंगे सेल्फ क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। 24 वालों को, ये 23 वालों को नहीं समझ में आया क्या, मुझे बोलो। अब ऐसे बोलोगे यार, ऐसा करो तो कैसे चलेगा? हाँ? अगर मैं यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ, क्लास टेस्ट, ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ डेफ सेल्फ, सॉरी p1 ओके, सेल्फ डॉट ए कर दो, प्रिंट ए। अगर मैं यहाँ पे p1 अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो अभी मैं a1 डॉट p1 करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 100 पास करता हूँ, अब मुझे बोलो 23 से, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 23। मुझे पता है आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो बाद में मेरे नाम से चिल्लाओगे कि सर ऑफर नहीं आ रहा है। मैं कितना भी इनपुट दूंगा तो आपसे, आपको आपका भी ये चाहिए गाइस। मैं मेंटर हूँ, आपको स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, स्पून फीडिंग, ठीक है, ये मेरा ये है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। सो इट इज नॉट ओके। सो हियर वी आर पासिंग a1 इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट रेफरेंस, दिस 100 इज नथिंग बट द हियर वैल्यू। अरे सो नो, यस सर। क्या अभी भूल गए क्या पूरा? सेल्फ में क्या बेचते हैं आप? सेल्फ क्या है कि ये a1 जो ये 100 है, इज बिलोंग टू a1, so that's why we need to pass the object reference along with these its values. So this a1 stored in self and the 100 stored in a, that's it, that's 100. Practice. ये क्लास ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं अब, नहीं हुआ क्या 23 के लिए? ऐसा करोगे कैसे चलेगा गाइस, मुझे बोलो यार, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है सर वो सेल्फ निकाला तो क्या एरर आएगा? सेल्फ निकालना एट्रीब्यूट एरर आएगा ना, ये मेथड है ना, ये मेथड है। उसको अगर निकालूंगा तो वो बोलेगा कि भाई तुमने 2 पास कर रहे हैं, एक ही दो दे रहे हैं, यहाँ से 2 पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही है। देखो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो क्या बोल रहे हो, पोजिशनल आर्गूमेंट्स 2 दे रहे हो, वहाँ पे 2 दिया है, यहाँ से 2 दिया है, लेकिन वहाँ तो एक ही है, एक ही लेता है T1 आर्गूमेंट्स है ना वो। सेल्फ वाला मतलब इंटरनल ये हुआ आर्गुमेंट। यस इंटरनल आर्गूमेंट्स। मैं जब क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना तो अपेंड किया ना 100 को। अरे नहीं, ये 24 वालों के लिए नहीं था ये एग्जांपल, ये 23 वालों के लिए, क्योंकि उनका क्लास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, उनको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे सेल्फ, अगर मैं सेल्फ नहीं, ये यहाँ पे मैंने किसी का नाम भी लगाता हूँ, तो यहाँ पे सपोज मैं लगाता हूँ विकास, कोई इशू नहीं, कोई इशू है क्या? नहीं, आर्गुमेंट्स है ना वो,
आर्गुमेंट तो कुछ भी रह सकता है, इंटर उन्होंने सेल्फ दिया है लेकिन हम उसको और राइड कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, हो जाएगा। प्रैक्टिस का लैकिंग है, नहीं तो मुझे क्या है यार, मैं पढ़ा के ये करूँ, मुझे क्या, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस बिहेवियर फ्रॉम पाइथन 20 और वापस से आके बोलते हो सर रिवीजन लो, ये ऐसा कैसे चले? आप प्रैक्टिस करोगे तो ही उसका काम, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम। चलिए, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन append and extend? Yes. Append will add single object. Okay. Extend will add multiple objects. Extend means we can extend the yes, we can extend the list. ठीक है, इसमें एग्जैक्टली अभी कौन कौन से फटाफट देखते हैं। अभी लिस्ट में कौन कौन से एट्रीब्यूट है। इंसर्ट बोलो, पॉप, रिमूव, हाँ, सॉर्ट, ओके, क्लियर और कॉपी हर एक इसमें, तो उसको हम अभी कॉमन के लिए नहीं लिखते। ओके, और मैं कल आपको चाहे ना तो फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉपी मॉड्यूल पढ़ाऊंगा और इस पे ना 101% एक क्वेश्चन देता है, 100% एक क्वेश्चन देता है। पाइथन में का कॉपी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉलो कॉपी क्या रहता है, डीप कॉपी क्या रहता है, वो मैं एग्जैक्टली पढ़ाऊंगा कल के इसमें सेशन में। हम कॉपी मॉड्यूल खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इंडेक्स, एक्सटेंड और ये इधर तो इसमें मेनली इंपॉर्टेंट क्या है। अब अगर कुछ आपको पूछेंगे नहीं पॉप और रिमूव में क्या डिफरेंस है, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉप में क्या होता है। पॉप में हम बाय यूजिंग इंडेक्स रिमूव करते हैं और रिमूव में बाय यूजिंग एलिमेंट। ओके, शॉर्टिंग में क्या होता है, शॉर्टिंग में शॉर्ट करना है, बराबर है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू रहता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है। अगर डिसेंडिंग करना है तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करना, बराबर है। काउंट पता है आपको, काउंट वगैरह। मुझे बोलो लिस्ट में, मैं नाम लेता हूँ लिस्ट में डुप्लीकेट्स एलिमेंट पॉसिबल है क्या, नाम लेता हूँ। एक सेकंड देखते कौन ये करता है। नितिन है क्या, नितिन? हाँ, है क्या, पॉसिबल है क्या लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स? हाँ सर पॉसिबल है। क्या बात कर रहे हो, सही में? अरे सही में कॉन्फिडेंस है क्या? ठीक है, पॉसिबल है। ओके, सो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर पॉसिबल इन लिस्ट, कोई इशू। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट है ट्यूपल। फटाफट ले लेते हैं, इसमें ये करता हूँ ट्यूपल में, फिर उसको मैं फंक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया फिर इसमें बताता हूँ। चलिए, ट्यूपल में कौन से है, इंडेक्स एंड व्हाट, काउंट। दो ही मेथड है। अगर उसमें थ्योरी देखेंगे तो इट्स एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, करेक्ट। वी कांट चेंज, वी कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, इंसर्ट वगैरह कोई वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद में इट्स फास्टर देन लिस्ट, डुप्लीकेट्स अलाउड। ये फास्टर है, कॉम्पैक्ट है, फिक्स टाइप मेमोरी है। जैसे लिस्ट में क्या है, लिस्ट में फिक्स एंड वेरिएबल दो टाइप्स के हैं। ओके, इट्स एन ऑर्डर्ड टाइप, ठीक है। ये दो ही मेथड्स है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, सेट को डिनोट करते समय एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है, वो टपल में आई थिंक 3 मेथड है, इंडेक्स, काउंट और एक चेक पॉइंट वाला एक मेथड था, मैंने लास्ट टाइम पूछा था। वो कौन सा? वो पाइथन में एक चेक पॉइंट्स करके वो एक मेथड दे रहा था। वो इनबिल्ट मेथड से, वो चेक पॉइंट बोल रहे हो ना, डंडर मेथड होगा वो। यहाँ पे बोल रहे हो, एक सेकंड में इसको p is equal to triple 1, 2, 3। ओके, p डॉट कौन सा बोल रहे हो, वही मेथड है कहाँ पे, ये पूरे डंडर मेथड है। इसमें चेक पॉइंट का नहीं है सर?
चेक पॉइंट वाला है ना कुछ? नहीं ना, दो ही है, नहीं क्या फंक्शन दो ही। मैंने वो लास्ट टाइम पाइथन में करा था तो उसमें मेरा चेक पॉइंट दूसरी इसमें होगा रे, उसमें आई थिंक मुझे लगता है डिक्शनरी में होगा। एक बार देखो एक बार। चेक अभी ये करता जो हूँ मेथड है ना, ये पूरे चेक, ये हम ये देखने वाले गए ना, ये आर आर प्रेजेंट, ये रिवर्स वाला आर्मल, उसके बाद में ये स्लॉट स्ट्रिंग, पूरे हम क्लास ऑब्जेक्ट में देखने वाले, इसको हम ओवरराइड करने वाले। लेस देन, लिंक, यहाँ पे ग्रेटर देन, हैश, और यहाँ पे इक्वल टू, डॉक, डिक्शनरी, ये सब देखने वाले। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर अंडरस्कोर अगर डिक करता हूँ, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, है ना, वहाँ पे क्या हो गया इसको, डिक्शनरी तो है। सिंगल कोट वगैरे पाहिजे का त्याला? नाही रे, सिंगल कोट याला कसं असेल? नाही नाही विचारतोय, आता ते बघितलेलं नाही आपण अजून. नाही नाही नाही, ते सिंगल कोट नाही, म्हणजे याच्यामध्ये सिंगल कोट आपण डॉट केल्यानंतर सिंगल कोट म्हणजे ऍडिशन तुला ऍड होणार, हे डिक आहे ना, कीवर्ड आहे रे तो, कीवर्ड आहे, कीवर्ड आहे, त्याच्यामुळे तो यूज नाही करू शकतो, ऍट्रिब्यूट नाही ना, कीवर्ड है। ठीक है, जाने दो। तो ये हो गया। सेट में क्या होता है बोलो? सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ unique elements. Duplicate elements not possible. नॉट पॉसिबल। ओके फाइन। इट्स Indexing एन not possible. अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है। Yes, sir. उसमें कौन कौन से Mutable है. मेथड्स है? इसमें कौन कौन से मेथड है सेट में? Update. यस, यहाँ पे सिंगल यूनरी ऑपरेशन, यूनरी ऑपरेशन में अगर सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो वी हैव ऐड मेथड, Add बराबर, method. सिंगल और एलिमेंट। update. ओके, और अगर इसको मैं अभी प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, यस, उसके बाद में अपडेट, अपडेट में यस डॉट अपडेट, तो मल्टीपल एलिमेंट्स वी कैन ऐड, वी नीड टू पास इनटू व्हाट, इन सेट। ये एक्सटेंड की जैसी है, एक्सटेंड कैसा है हमारा, उसकी जैसी मल्टीपल एलिमेंट। अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट, यस, ओके, करेक्ट, one is for single element, another is for multiple elements, ठीक है, यस, नेक्स्ट। अगर दो या तीन सेट है, दो सेट, तो वी कैन परफॉर्म कौन कौन से? डिस्टिंक्ट, ओके, Union वगैरह operation. इंटरसेक्ट, यहाँ पे वन कमा ऐसे कुछ है, इसका इंटरसेक्ट अगर निकालना है तो प्रिंट यस डॉट व्हाट, इंटरसेक्ट ऑफ यस वन, ओके, इनका दोनों का इंटरसेक्ट आएगा, इंटरसेक्ट, करेक्ट। उसके बाद में अगर मुझे ये करना है क्या, इंटरसेक्ट अपडेट, मैं एक शॉर्ट में बोल रहा हूँ हम, इंटरसेक्ट अपडेट, आपको इंटरसेक्ट अपडेट, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटरसेक्ट और इंटरसेक्ट अपडेट कर देगा सर। यस, ये यस अपडेट हो जाएगा। तो यू कैन से, अगर इसको करूँगा तो ये नन आएगा क्योंकि हमने प्रिंट में लिखा है। अगर इसको अभी प्रिंट करेंगे, प्रिंट यस, तो अब वो उसका इफेक्ट देखो, वन, ये उसका रिजल्ट था, ये उसमें अपडेट हो गया। ओके, वैसे ही यूनियन का है, सॉरी कौन सा है, और उसमें डिफरेंस है, उसके बाद में कौन सा है डिफरेंस, क्या अर्थ है डिफरेंस? Elements present in set 1 but not present in set 2. Yes, yes, Set one yes. difference. So यहाँ पे element present in set 1 not in 1, 100, sorry, 100, 200, 300. Okay, तो आउटपुट क्या आएगा बोलो इसका? Yes, one dot set difference, set underscore difference, set underscore, sorry, Dot differences. difference. ओके, यहाँ पे यूज करता हूँ,
see 2 and 3 because 2 and 3 present in S, not in S1. So it's a set difference. Okay. Next, update में वो होगा, उसमें को और कुछ बताने की जरूरत है सेट में? बाकी ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन है? ऑलमोस्ट हो गया ना? दिस डॉट ऐड हो गया, क्लियर कॉपी जो तो पता है, डिफरेंस पता है, डिस्कार्ड भी पता। हाँ, डिलीट में कितने रहते हैं? 3 टाइप के, डिस्कार्ड, रिमूव एंड पॉप। रिमूव में क्या होता है बोलो? रिमूव में सर अगर एलिमेंट एलिमेंट रिमूव होता है, हाँ एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो ये करेगा, अदरवाइज एरर करेगा। की एरर आएगा, ओके। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कर देगा, कोई इशू नहीं। अगर एलिमेंट है प्रेजेंट तो वो कर देगा, इसको कोई इशू नहीं। यहाँ पे उसने मुझे करना पड़ेगा, ये करेगा। और अब देखोगे यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैं, प्रिंट यस, नाउ यू कैन सी। डिस्कार्ड में क्या होता है कि एलिमेंट प्रेजेंट रहो या ना रहो, अगर प्रेजेंट है तो वो रिमूव करेगा, अगर नहीं है तो फुल एग्जीक्यूशन, कोई एरर नहीं देगा। और पॉप में क्या होता है? रैंडम एलिमेंट randomly deleted करना। yes, so it's an in a set. Come to the dictionary. Okay, what dictionary? Nothing but the key value pair. So here A is given. Okay, यहाँ पे B, यहाँ पे 2, okay, यहाँ पे C 3. कोई इशू नहीं। सब अभी इसको मुझे ऐड करना है, नया एलिमेंट ऐड करना है। इसमें क्या करोगे आप? टू ऐड न्यू एलिमेंट, की वैल्यू पेयर, यस, D of what? D. Okay, so here I just want 100. So print D. Okay, you can see I have added. Okay, इम्पॉसिबल है लेकिन खुलेगा, लेटेस्ट होने वाला है। ओके, अगर मल्टीपल एलिमेंट्स इसमें ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? मल्टीपल एलिमेंट्स इसमें ऐड, अपडेट, यस अपडेट, सेम लाइक सेम इस जैसे अपडेट क्या चाहिए आपको? मल्टीपल चाहिए तो इधर एक्स तो मुझे करना है 100। ओके, यहाँ पे वी ई, यहाँ पे मुझे करना है 200। ओके, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डी, कैन सी वी हैव एडेड जी की वैल्यू पेयर, मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स, करेक्ट? ओके, अब मुझे बोलो व्हाट हैपन इन सेट डिफॉल्ट, और कौन कौन से उसमें? यस, यूनिट है, का नेम पहले होगा तो डी डॉट सेट डिफॉल्ट, बोलो। कि अगर पहले होगी तो वैल्यू रिटर्न करता है स्पेसिफाइड की का। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ए और यहाँ पे करता हूँ अगर 100, क्या होगा? अभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी की प्रेजेंट है, उसका वैल्यू रिटर्न कर, करेक्ट? ओके, अगर सपोज की प्रेजेंट नहीं है, ये अगर प्रेजेंट नहीं है, A1 करता हूँ, नाउ इट विल ऐड इंसर्ट। सर कॉमा दिया आपने। ओहो, यहाँ पे मेरा A1 का A निकल गया। You can see A1 will be added, correct? Okay, set default, अगर है प्रेजेंट वो नहीं करेगा, अगर नहीं है तो फिर उसमें ऐड करेगा, ठीक। गेट में देखो, गेट में क्या होता है? D1 डॉट गेट, अगर मैं A करता हूँ तो उसका वैल्यू रिटर्न, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली? आई वांट डिफरेंस। वैल्यू नहीं है डिफॉल्ट तो मैसेज दे सकते हैं सर हम, अगर नहीं होगा कर दूंगा यार। अगर वैल्यू नहीं है, अगर मैं यहाँ पे की कौन सा भी देता हूँ, ये ऐसे देता हूँ, ये की प्रेजेंट है क्या डिक्शनरी में? नहीं,
रिटर्न यहाँ पे कुछ नहीं, हमने मैसेज दिया क्या? नहीं दिया। अगर मैसेज देना है तो यहाँ पे मैसेज दे सकते हो। ओके ओके गया ओके ओके फाइन। नेक्स्ट, अगर आपको वैल्यू चाहिए, अगर सॉरी वैल्यू चाहिए हो, आप उसके लिए मेथड कौन सा है? गेट वैल्यूज डी डॉट D dot values. गेट वैल्यूज 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 एंड कीज क्या यार, आप भी गेट वैल्यूज के ओके प्रिंट डी डॉट व्हाट कीज, उसके बाद प्रिंट डी डॉट आइटम्स देखो ओके चलिए। नेक्स्ट क्या देखा था हमने? कंट्रोल स्टेटमेंट। टाइप कास्टिंग देखा था। टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि वी कैन कन्वर्ट वन टाइप टू अनदर टाइप। कौन कौन से इसमें? अगर सपोज हाँ, अगर मेरे सपोज ए इज इक्वल टू अगर सपोज पाइथन है, पाइथन है, एंड अगर मैं इसको मैं इंटीजर कर रहा हूँ, ए इंटीजर, क्या होगा बोलो? क्या होगा? नहीं होगा होगा क्या? नहीं नहीं होगा, एरर आएगा, एरर। एरर हाँ ओके। यहाँ पे अगर मैं 50 करता हूँ, 50 या 10 देन इट विल कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। अगर इसको मैं वापस स्टोर करता हूँ ए में, ए इज इक्वल टू इंट ए, ओके, और उसको मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ ए, ओके ओके, नाउ इट इज अ इंटीजर टाइप। ओके, समझ आ रहा है क्या? तो ऐसा टाइप कास्ट। अब लिस्ट का इसमें भी कर सकते हो, ट्यूपल में, ट्यूपल का सेट में, ऐसे कहीं कौन से भी इसमें कर सकते हो। समझ आ रहा है? उसमें मुझे बोलो, अगर मेरे पास लिस्ट है 1, 2, 3, ओके, और मुझे इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे आप? सिर्फ फंक्शन से कर सकते हैं। ओके, और जिप में दो इटरेबल लगते हैं, दो इटरेबल, तब जाके वो जिपिंग होता है। यस सर। यहाँ पे एक ही इटरेबल्स है, तो जिप कैसे होगा? सर वो बाय डिफॉल्ट नन वैल्यू पे ये लिंक कहीं पे लीक हो गए क्या? मुझे लगता है कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो हमारे क्लास के नहीं है। कल से बनाया नहीं, हाँ? तो बोलो क्या करोगे? जो बाय डिफॉल्ट नन वाला था। तो कौन सा है फिर? वो मेथड कौन सा है वो मैं पूछ रहा हूँ, भूल गए? इट्स एन फ्रॉम कीज, ओके, वेयर डिक्शनरी डॉट व्हाट, यस सर। फ्रॉम कीज। यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ, भूल गए, प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बोलते हो फिर मुझे सर मेरा ऑफर क्यों नहीं आ रहा है? कैसे आएगा ऑफर? देखो यहाँ पे नन वाला, अगर आपको वैल्यू चाहिए था यू कैन पास वैल्यूज, अगर मुझे चाहिए कुछ जीरो वैल्यू, यस यू कैन जीरो वैल्यू, ओके। डिक्शनरी का था, उसको मैं भूल गया था, उसके लिए मैं बताया, ठीक है, कोई इशू? इक्वल टू अगर मैं ओके टाइप कास्टिंग में। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। फास्ट ले रहा हूँ मैं कंट्रोल स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे वो बहुत सारा बोलना है, अभी यहीं पे मैंने बहुत कर दिया। कौन सा है? इफ एल्स, उसके बाद इफ एल्स लैडर nested if लैडर, if else
बाद में हमने अभी ये कहाँ कहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे इफ कब यूज करना है जब आपके पास क्या है, ओनली वन कंडीशन इफ एल्स कहाँ पे यूज करना है, दो कंडीशन जब है More than two conditions. condition which is contradictory. Next one, More than two conditions. ladder more than two condition. Okay. Condition. Okay, यहाँ पे तो आपके पास one condition what depends, right? or you can say dependency, समझ में आया क्या, depends on other, depends on other. इफ के बाद इफ अगर वो कंडीशन ट्रू होते थे उसके अंदर की होगा ना, ये हो गया। इसके बाद लूपिंग कंट्रोल, लूप में कौन कौन सा है, For loop and while. फॉर लूप एंड while दोनों में क्या डिफरेंस है बोलो। फॉर लूप में नंबर ऑफ इटरेशन पता होता है, while loop में condition true, while फॉर लूप में सीक्वेंस होता है, दैट मींस इटरेबल्स को हम वन बाय वन Yes. कर सकते हैं। while लूप में ऐसा नहीं, while लूप में जब तक कंडीशन कंडीशन है रहेगी तब तक ट्रू, तब तक अदरवाइज वो void. ये करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। Yes. ओके, अब क्या करें, ये हुआ इसमें लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक एंड कंटिन्यू तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ब्रेक क्या करतेगा, जब वो कंडीशन ट्रू करेगा, बराबर है, ब्रेक स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, लूप इट विल स्टॉप, इट विल टर्मिनेट, या कंटिन्यू में क्या होगा, स्किप करेगा वो कंडीशन वो आइटरेशन क्या करेगा, वो करेगा। करेक्ट, तो इशू है ब्रेक और कंटिन्यू में। नो सर। ओके, अब मुझे बोलो मैं दोनों भी यूज कर सकते क्या सेम लूप में, कैन वी यूज बोथ ब्रेक एंड कंटिन्यू इन सेम लूप। अरे ऐसा टाइम लगाओगे तो फिर कौन बोलेगा यार आप रियल टाइम में हो। यस सर कर सकते कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल थोड़ी है। वी कैन यूज ब्रेक एंड कंटिन्यू इन सेम लूप, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट इसको है ना आज इसको कंप्लीट कर लेता हूँ और नेक्स्ट इसको हम एग्जाम्पल का रिवीजन लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू फटाफट कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें सब कंडीशन, तो इफ एल्स वाला भी आना चाहिए, फॉर वाला भी आना चाहिए, व्हाइल वाला भी, सब का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, चलेगा ना। तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे 1-2 घंटे में, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसके बाद में बोलो फंक्शन किया था, फंक्शंस, बोलो फंक्शन में क्या है, स्ट्रिंग का फंक्शन, यस फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा, टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यूज, विद आर्गुमेंट्स, यस नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट विद वैल्यू। यस, तो जैसे 4 टाइप्स, करेक्ट। यस सर। रिटर्न यूज करने के बाद में क्या यूज करना पड़ता है, अगर मैं कोई एक ये लेता स्टोर हूं, करने के लिए वेरिएबल, स्टोर करने के लिए, यस अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ इसको, यहाँ पे डेफ एक ही लेता हूँ, डेफ टेस्ट, ओके, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू पास करता हूँ, यहाँ पे var, तो यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशन करता हूँ और var इक्वल टू var प्लस var, ओके, और मैं रिटर्न,
रिटर्न वेयर। यहाँ पे क्या किया हमने, एक वैल्यू पास किया, रिटर्न भी एक वैल्यू। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ पेस्ट पेन, जब इसको मैं ये करूँगा तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ना, करेक्ट। वहाँ पे मैं T1, ये क्या होगा, जो वैल्यूज है यहाँ का वो कहाँ पे स्टोर होगा, T1। यस यू कैन सी T1। ओके ओके समझ में है? यस सर। यस ओके। आप मुझे बोला आर्गुमेंट्स के टाइप की इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा एक करेंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट्स के टाइप के हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे पोजिशनल, ओके पोजिशनल, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, उसके बाद में वेरिएबल है, वेरिएबल लेंथ, बाद में वेरिएबल लेंथ, कीवर्ड्स, बाद में कीवर्ड्स, कीवर्ड, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड, वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ, कीवर्ड आर्गुमेंट्स के वन बाय वन देखेंगे, एक ही इसमें फटाफट देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डेफ प्रोडक्ट 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 यहाँ पे आईडी, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर मैं पास करूँगा प्रिंट, यहाँ पे आईडी, प्रिंट, यहाँ पे क्वांटिटी, ओके, यहाँ पे प्रिंट सेल्स, प्रिंट प्रॉफिट। ओके, ये क्या होगा, अगर जब भी मैं प्रोडक्ट नाम का एक ये कॉल करूँगा कॉल फंक्शन, तो मुझे अगर मैं करूँगा 10, और यहाँ पे अगर मैं करूँगा क्वांटिटी, यहाँ पे करूँगा सेल्स, प्रॉफिट समथिंग, ये क्या है, पूरे पोजिशनल आर्गुमेंट्स, करेक्ट। जो पोजीशन से हम सेंड कर रहे हैं उसी पोजीशन से वो स्टोर हो रहा है, ऐसा नो। अगर मैं कॉल करूँगा तो यू कैन सी टेन कहाँ से आया, ओह 10 इसका ही लगा 10। ये क्या होगा, पोजिशनल आर्गुमेंट। अगर एक भी आर्गुमेंट अगर मैच नहीं होता है, दैट मींस अगर आप 4 भेज रहे हो और उसको कैच करने के लिए 4 आर्गुमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, कौन सा एरर थ्रो करेगा, आर्गुमेंट एरर, आर्गुमेंट्स की पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ओके, इतने आर्गुमेंट कौन सा भी इसमें, अगर यहाँ पे वैल्यू भी आप नहीं पास कर रहे हो तो वो देखो कौन सा है, पोजिशनल आर्गुमेंट्स। देखो प्रोडक्ट मिसिंग वन पोजिशन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, प्रॉफिट लास्ट वाला मैंने पहले बोला आपको, लेफ्ट टू राइट स्कैन होता है। 435 किस में स्टोर हुआ, आईडी में, बराबर है। ये किस में हुआ, क्वांटिटी में, और ये किस में, क्वांटिटी में, तो लास्ट वाला प्रॉफिट को उसको मिल लिया। दैट्स व्हाई पोजीशन आर्गुमेंट मिसिंग लोड, करेक्ट। यस सर। यस सर। अब बोर हो गए क्या, नो सर। नो सर, नो सर। मैक्सिमम लोग को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, अगर ऐसा है तो मैं स्टॉप कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं सर, ले लो सर। नो सर। मैक्सिमम लोग सो गए आई थिंक, मुझे लग रहा है। ओके, तो ये हो गया पोजिशनल आर्गुमेंट। नेक्स्ट है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसमें डिफॉल्ट रहेगा क्या, ओके डिफॉल्ट में क्या होता है, अगर आपके पास आर्गुमेंट का वैल्यू नहीं है आपको, लेकिन वो कभी आ सकता है, ऑप्शनल आर्गुमेंट, कंपलसरी में नहीं था। अगर मैं प्रॉफिट को मैं अगर यहाँ पे डिफॉल्ट कर देता हूँ सपोज 0, अगर नहीं हम अगर सेंड नहीं कर रहे तो वो क्या करेगा, उसको 0 डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नेक्स्ट वेरिएबल लेंथ, आपको पता नहीं है कितने टाइप्स का आर्गुमेंट आने वाला है। तो यहाँ पे अगर चाहे आप अंडरस्कोर आर्क्स अभी आपको देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्रिंट आर्क्स खत्म। Now you can pass any number of arguments, but जब भी आप वेरिएबल लेंथ करोगे तो वो कौन से फॉर्म में स्टोर होगा, ट्यूपल के फॉर्म में। ओके, इट विल स्टोर इन कोई इशू।
इशू है क्या? No, sir. No, sir. नो सर, नो सर, No, नो sir. सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? यहाँ पे मैं ओके मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आईडी हो रही तो आपको अभी आपको पता नहीं है पोजीशन क्या क्या है, तो वी कैन पास। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ क्वांटिटी क्वांटिटी इज इक्वल टू ओके, इसको करता हूँ अगर मेरा सेल्स है, सेल्स सेल्स इज इक्वल टू ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट और इसको मैं इशू नहीं, यू कैन सी आईडी में आईडी स्टोर होगा, क्वांटिटी में क्वांटिटी, बिकॉज वी आर पासिंग द की वैल्यू। ठीक है? Yes, sir. अभी अभी वेरिएबल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट मींस क्या, आपको पता नहीं है अभी कितने कीवर्ड आर्गुमेंट आने वाले हैं, मतलब कितने कितने आर्गुमेंट्स आने वाले, तो आप उसको क्या कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे स्टार स्टार के लगा देते हो, कोई इशू नहीं, आप कितना भी पास करो कोई इशू नहीं। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट कितना भी पास करता हूँ की वैल्यू पेयर में आएगा अभी यहाँ पे। और वापस से अगर मैं ये करता हूँ लोकेशन लोकेशन सॉरी लोकेशन यहाँ पे मैं करता हूँ पुणे, ओके फाइन। कीवर्ड वेरिएबल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ओके यस सर, यस। ओके। उसके बाद में आता है हमारा एनोनिमस लैम्बडा फंक्शन। सर रिकर्शनचं एखादं एक्झाम्पल घेता? हो हो, रिकर्जन बाकी अजून आहे ना? हो हो हो. येस येस येस। रिकर्जन मध्ये कोणतं घ्यायचं म्हणजे काय एक्झाम्पल? सिंपल एखादं सिंपल दाखवा, स्टॅकचं घ्या सर. ओके एक्स का ना, हेलो हां सर. यस एक्स का हाँ सर ठीक है चल। ओके नेक्स्ट है कौन सा नेक्स्ट, लैम्बडा फंक्शन, लैम्बडा एक्सप्रेशन। कल आपको रिकर्जन का भी बता देता हूँ। लैम्बडा एक्सप्रेशन, तो लैम्बडा एक्सप्रेशन में क्या होता है बोलो? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है लैम्बडा एक्सप्रेशन? एक ही लाइन सिंगल लाइन नहीं, वो एक टेम्पररी फंक्शन जस्ट इन एनोनिमस है। Just in time or temporary. अगर मैं करूँगा यहाँ पे करता हूँ मैं, सपोज यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन बनाता हूँ, बोलो लैम्बडा एक्स कोलन एक्स, ओके इसको मैं प्लस करता हूँ 100 से। आप जब भी कुछ कुछ वैल्यू भेजोगे उसको पी को कॉल करोगे पी ऑफ 100 कर, तो क्या होगा बोलो? 200। लेकिन हमने प्रिंट नहीं किया ना उसको, उसको हम प्रिंट डायरेक्ट उसको मैं प्रिंट करूँगा कॉल करके प्रिंट, ठीक है कैन सी 200। तो जस्ट इन टाइम, चलो अभी अभी हम यूज कर रहे हैं तो उसको आप वैल्यू आसान कर रहे हो, अदरवाइज वी डोंट नीड टू असाइन द वैल्यू बिकॉज वी आर यूजिंग इन अ सिंगल लाइन। सर हे लांबडाचा कन्सेप्ट आला तर तुम्ही एक क्वेश्चन पाठवला होता, तो घेता का? हां सांगा सर। मेलवर पाठवला होता बघा सर. वरती होता. ओके ठीक है, आप देखो इसमें क्या एग्जैक्टली कैसा एग्जीक्यूशन हो रहा है वो समझ में आया आपको? इसका आउटपुट नेमकं मेमरी मध्ये स्वॅप कसं होतं ते कळालं नाही. सॉर्ट होतंय ना ते सध्या. अरे हे शॉर्ट तर याच्यावरती होतं ते, बरोबर आहे म्हणजे हो. ओके। आता आपण तुम्ही काय केलं इथे, इथे हे पीपल्स है बराबर है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो एक्स ऑफ पीपल, दैट मीन्स जो एक्स भेज रहे हो एक्स में क्या भेज रहे हैं दिस वन, ओके सो इट विल ओनली टेक दी वन वैल्यू, ओके दैट मीन्स 88 90 97। अगर आप इसको की प्रिंट करोगे ना की, अगर मैं इसको की प्रिंट करूंगा
तो यू विल ओनली फेचिंग दी वैल्यूज। यहाँ पे अगर देखोगे उसका, इसको मैं इसको ये कर देता हूँ और यू कैन सी, इसको भी कर देता हूँ और कीज में करता हूँ, कीज प्रिंट की करता हूँ। आप देखोगे हमने क्या किया, 1 बाय 1 एलिमेंट यहाँ से फेच किया। पहले आएगा ट्रिपल एक्स में आएगा, करेक्ट, एक्स में ट्रिपल आ गया। उस एक्स का आपने क्या क्या एक्सेस किया, ओनली क्या एक्सेस किया, 88 वैल्यू वैल्यू, ये वन पोजीशन वाला। सेकंड आया साइंस 90, अगेन 90 आ गया, मैथ 97 97 आ गया, सोशल 82 आ गया। ऐसा हमारे पास क्या बन गया, एक लिस्ट बन गया, ओके एक वैल्यू बन गया ना। अगर आप इसको ये करोगे ना तो यू कैन सी ये लैम्बडा का ही बन गया कि इसको हमें करना पड़ेगा, क्या फिर मैंने उसको पास करना पड़ेगा ना लैम्बडा को, यहाँ से हमें उसको पास करना पड़ेगा डबल पी, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी साइंस 90 बाय साइंस 90 क्यों लिया उसने डायरेक्टली, तो लिस्ट में ना पहला एलिमेंट आएगा ना, ओह सिग्ने 1 है ना सर इसलिए। अरे नहीं ओके कनेक्शन, हाँ लिस्ट का है क्या, एक और सॉरी, अरे ये आउटर लिस्ट में, सॉरी मे बी ये लिस्ट में है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, ओके। तो लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एक सेकंड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहला ये एग्जीक्यूट होगा ना, एक्स में की को हमने लिस्ट दी, मैं क्या करता हूँ लिस्ट के अंदर आउटपुट क्या आना चाहिए इसमें? आउटपुट इसने कलेक्शन क्या किया है, हर एक अभी एलिमेंट एज ए एलिमेंट कंसीडर किया है, शॉर्टिंग किया उन्होंने, इनडायरेक्टली एक शॉर्ट का लिस्ट आना चाहिए, ओके। क्योंकि ये जो ट्रिपल है, ट्रिपल डॉट शॉर्ट बराबर है, तो ये ट्रिपल क्या है हमारा लिस्ट है ना, लिस्ट में हमारा मेथड है एक शॉर्ट नाम का, वो शॉर्टिंग करेगा, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन वो शॉर्टिंग करने के बाद वो एलिमेंट कौन सा लेने वाला है, यहाँ पर अगर मैं उसका एग्जीक्यूशन बता दूँ, जस्ट वैल्यूज शॉर्ट होगा, वैल्यूज मींस फर्स्ट एलिमेंट पे शॉर्ट किया हुआ, शॉर्ट की नाम का एक आर्गुमेंट्स है, ओके। लैम्बडा एक्स आ रहा है, एक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मींस 88, ओके। तो उसका सॉर्टिंग होगा, वो लिस्ट में 88 होगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा 90 को शॉर्ट करेगा लिस्ट में, मैथ 97, ओके। तो ये पूरा एक लिस्ट बनेगा, अगर ये करेंगे लिस्ट, of
तो इस 1 वाला लिया, ठीक है, ये एज अ ए लिया। अगर मैं इसको सिंगल ऑब्जेक्ट लिया ना उसने पूरा का पूरा एज अ, और उसमें से 1 एलिमेंट लिया। लिया, ठीक है, उसके बाद में उसने शॉर्ट किया, उसके बाद में उसने एक लिया, उसको 1 पोजीशन, अगर मैं उसको 0 करता तो वो उसने लिस्ट लेना चाहिए। 0 और बाद में सर इंडेक्सिंग परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, इंडेक्सिंग हो रहा है वो नहीं, एग्जैक्टली हर एक टाइम वो लूपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लूपिंग करके जो की लगाया ना की, इसमें क्या कर रहा है वो एग्जैक्टली, यहाँ से एक 1 बाय 1 एलिमेंट आ रहा है, यहाँ से 1 बाय 1 उसका फर्स्ट एलिमेंट को वो की में स्टोर हो रहा है, उसको शॉर्टिंग करके वो लिस्ट में दे रहा है। ओके, यहाँ पे वो सेकंड आएगा, उसको शॉर्ट करके लिस्ट में, दैट मीन्स 88 99 स्टोर होगा। उसके बाद में ये आएगा एलिमेंट 97, 88 90 97, और फिर ये आएगा तो 88 के पहले जाएगा, तो क्योंकि ये शॉर्ट, ये यहाँ पे है ना लिस्ट करके शॉर्टिंग हो रहा है, यहाँ पे वो लिस्ट बन रहा है, लिस्ट आउटपुट क्या चाहिए? अरे ये इसमें क्या है यार, इसमें उन्होंने इधर का लिया हो, विकास आपने यहाँ के शॉर्ट मेथड का की यूज किया है, और यहाँ पे करोगे ना लैम्बडा कहाँ का यूज किया आपने, शॉर्ट मेथड का, डॉट क्या है वो, यहाँ पे की नाम का एक ही रहेगा, ये यूज किया ना आपने। यस सर, यस। सो इनबिल्ट ये है, ये यहाँ पे आप लैम्बडा लगा सकते हो, यहाँ पे अगर मैं की करूँगा की इजको तो वही सेम लैम्बडा, ओके, लैम्बडा एक्स कोलन एक्स, ओके, और यहाँ पे हम चाहे तो रिवर्स 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 कॉपी करके जी, तो एग्जैक्टली ये की क्या करता है, वो इंटरनली 1 बाय 1 एलिमेंट ले रहा है और सिंगल एलिमेंट पास कर रहा है, तो लूप हो रहा है कहीं, ठीक है, मैं एग्जैक्टली देख के बताता हूँ एग्जैक्टली वो की आर्गुमेंट उसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग। ओके सर, आणि ह्याच्यामध्ये आपण सॉर्टिंग टेक्निक कोणती वापरली जाते असं काही प्रश्न येऊ शकतो का? नाही नाही ना, असं तर ठीक काही क्वेश्चन विचारला नाही, मी एकदा बघून सांगतो एक्झॅक्टली कोणतं बबल शॉट वापरत आहे, कोणतं वापरत आहे बघून, क्योंकि की नन है ना, तो की का कोई तो भी एक मीनिंग रहेगा, ये नॉर्मल की नहीं है, ये आर्गुमेंट है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। म्हणजे त्या टप्पल मधलं तो फर्स्ट लोकेशन घेत होता, आता समजा त्यानं टप्पल लिस्ट मध्ये आहे, तर तो पहिली जे टप्पल झाली ती 0th लोकेशन झाली, त्या 0th लोकेशन मध्ये परत 2 एलिमेंट आहेत, तर त्याच्यातलं फर्स्ट एलिमेंट असंच कन्सिडर केलं. तो तसंच झालेलं ॲट्रिशनच झालेलं आहे, हे ॲट्रिशन म्हणजे फर्स्ट टाइम हे एक्स मध्ये हे आलेलं एक्स मध्ये, हो, पूर्ण ते आलं आणि त्याच्यामधला पहिला म्हणजे पहिला 88. एलिमेंट आला, तो की असाइन झाला, तर एक्झॅक्टली कीला असाइन झाला, नेमकं त्या कीला काय केलं त्यांनी एक्झॅक्टली तो बघायचं। बरोबर, ओके, एग्जैक्टली म्हणजे ठीक है, मैंने बोल दिया की इज इक्वल टू 20 कर रहा हूँ, में 30 कर रहा हूँ, क्या है ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है क्या, ठीक है, यहाँ पे ये की काय करतो एक्झॅक्टली ते बघायचं, कारण की लॅम्बडाला त्याला कीच येते ना, तो व्हॅल्यू येणार ना, हो हो बरोबर, एक वैल्यू क्यों, कारण कि ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ एक्स में, 188 आएगा की को असाइन होगा, हो हो तसंच यायला पाहिजे. बराबर है, तो वो 88
जैकेट दिया है